नमस्कार। आज इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो पिछले कुछ समय में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं हम उनके बारे में आपको आज बताएंगे। तो हमरा जे गतो कोएक समय निये जे इंडस्ट्री एवं कॉमर्स डिपार्टमेंट मध्ये जो नूतन प्रोजेक्ट, नूतन स्कीम, नूतन इन्वेस्टमेंट जे আমরা শুরু করেছি এটা নিয়ে কিছু আজকে কথা বলবো। স্টেট গভর্নমেন্টের যে মান্থলি প্রেস ব্রিফিং এর একটা পার্ট মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট গতকালকে শেষ হয়েছে, তারপরে আমরা এটা আবার প্রেস ব্রিফিং শুরু করেছি। আপনারা সবাই জানেন একটা পিএম একতা মল, ইউনিটি মল হচ্ছে আমাদের যেখানে জুট মিল যেখানে আছে জুট মিল কমপ্লেক্স মধ্যে। তো এটা একটা প্রজেক্ট আমরা শুরু করতে পেরেছি। তারপরে রাজ্যে প্রায় 45,000 মাইক্রো मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज আছে, ছোট উদ্যোগ আছে। তো এই সবইকে সার্ভে করে ট্রেনিং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করার একটা প্রজেক্ট আমরা নিয়েছি, র্যাম রেজিং এন্ড অ্যাক্সেলারেটিং দ্য এমএসএমই পারফরম্যান্স। এটা একটা ভারত সরকারের একটা প্রজেক্ট। আমরা ভারত সরকার থেকে প্রায় 65 করোড় টাকা আমরা পেয়েছি। আমরা ট্রেনিং করাবো, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, মার্কেটিং সাপোর্ট ইত্যাদি আমরা করব। আমরা অনেক ইনভেস্টমেন্ট সামিট মধ্যে আমরা অংশগ্রহণ করেছি, যেমন ভাইব্রেন্ট গুজরাট, এটা হায়দ্রাবাদ মধ্যে হয়েছিল, মুম্বাই মধ্যে হয়েছিল, তারপর কলকাতা, গুয়াহাটি মিনিস্ট্রি অফ ডোনার থেকে আয়োজন করা হয়েছিল। তো আমরা গত এক বছর মধ্যে প্রায় 14 এমওইউ আমরা সাইন করেছি আর 6 মিডিয়াম সাইজ উদ্যোগ এখানে ইনভেস্টমেন্ট করেছি। রাজ্যে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য কম সময়ের মধ্যে পারমিশন, লাইসেন্স অথবা সার্টিফিকেশন করা হয়। এই জন্য আমরা বিজনেস রিফর্মস আমরা করছি। তো এই বছর ভারত সরকার থেকে ট্যাক্সিং প্ল্যান দেওয়া আছে, এখানে 287 অ্যাকশন পয়েন্ট দেওয়া আছে, আমরা এখানে কাজ করছি। তারপরে পিএম বিশ্বকর্মা, আপনারা জানেন যে পারম্পরিক যে কলা কৌশল আছে আমাদের নর্থ ইস্ট মধ্যে, সেটা প্রায় 50,000 লোক এখানে আবেদন করেছে পিএম বিশ্বকর্মা। তো আমরা এখানে অ্যাপ্রুভাল করে প্রায় 10,000 জনকে আমরা ট্রেনিং শুরু করেছি। তারপরে যে গত মাসে 19-20 মে ভারত সরকারের সচিব, মিনিস্ট্রি অফ মাইক্রো স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজের সচিব শ্রী সুভাষ চন্দ্র লাল দাস মহোদয় এখানে ভিজিট করেছেন ত্রিপুরাতে। উনি অনেক নির্দেশ আমাদেরকে দিয়েছেন, ম্যাডাম এটা ডিটেল মধ্যে বলবে। তারপরে ভারত সরকারের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট স্কিম, এটা 8 এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে গেছে। উন্নতি, এটা এখানে যারা উদ্যোগ শুরু করবেন ওদের জন্য ক্যাপিটাল ইনসেন্টিভ প্রায় 7.5 কোটি টাকা পর্যন্ত দেওয়া যায়। অন্যান্য বেনিফিট আছে, সেটা নিয়েও আমরা আপনাকে ব্রিফ করবো। রাজ্য সরকার একটা স্কিম আছে, ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ইনসেন্টিভ স্কিম, টিপস 2022 থেকে আছে, এটাও আমরা রূপায়ণ করছি। আমাদের রাজ্যের যে আইটিআই যে অ্যাডমিশন প্রসেস ইতিমধ্যে শুরু হয়ে যাবে, আগামী সোমবার থেকে 10 জুন থেকে শুরু হয়ে যাবে। তো সেখানে আমরা কাজ করছি। আর আইটিআই মডার্নাইজেশন একটা প্রোগ্রাম আছে ভারত সরকারের স্ট্রাইভ প্রোগ্রাম মধ্যে আমরা মডার্নাইজ করছি।
যে ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি জন্য স্কিম আছে, আপনারা জানেন আমাদের কুমারঘাট যে ইন্ডাস্ট্রি সেট থেকে যে পাইনঅ্যাপল ক্যানিং করে আমরা গত 2 বছর যাবৎ ইউরোপ মধ্যে পাঠাচ্ছি। এই ধরনের অনেক ছোট মিডিয়াম উদ্যোগ আমাদের রাজ্যে আসছে। তারপরে অনেক অনেক প্রজেক্ট আমাদের টিআইডিসি টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন একটা অকশন সেন্টার শুরু করেছে মার্চ মাসে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আছে আমাদের বাংলাদেশ থেকে যে আমদানি রপ্তানি। তো আমাদের सबरूम ল্যান্ড পোর্ট 9 মার্চে উদ্বোধন হয়েছিল। তারপরে গত মাসের 23 তারিখ আগরতলাতে ভারত और বাংলাদেশ থেকে জয়েন্ট মিটিং হয়েছে। এখানে আমাদের আধিকারিক, বাংলাদেশ আধিকারিক এবং যারা হলদিয়া, চট্টগ্রাম, আশুগঞ্জ পোর্ট দিয়ে যারা কাজ করে, এরকম লজিস্টিক্স কোম্পানি এখানে ছিল, আমাদের রাজ্যের যারা ট্রেডার্স ওখানে ছিল। এই যে ট্রেড রুট চিটগাঁও, আশুগঞ্জ, হলদিয়া, এটা দিয়ে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট শুরু করার জন্য যে প্রসিজার এখানে সবাইকে বোঝানো হয়েছে। এখানে অনেক ওদের কোয়েরি ছিল, কত সময় লাগবে, কত পারমিট লাগবে, কোথায় কি ফিস ভরতে হবে। অনেক এখানে সুবিধা অনলাইন করা গেলে সুবিধা হবে। আমার মনে হয় যে চট্টগ্রাম এবং আশুগঞ্জ পোর্ট দিয়ে যে আমদানি রপ্তানি এটা কয়েকদিন মধ্যে शुरू হবে। तो हमें बाद देन वो लोग लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जब हमारे सेक्रेटरी सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जब सेक्रेटरी सर आए थे, ACL दास सर आए थे, उन्होंने ये बताया था कि त्रिपुरा ने डे 1 से PM विश्वकर्मा में हमने अच्छा सा इनिशिएटिव लिया। हालांकि हमारे में कुछ प्रॉब्लम्स थे, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोऑर्डिनेट करके हमने इसको अच्छा इम्प्लीमेंट किया। त्रिपुरा हैज़ इम्प्लीमेंटेड बेटर इन ऑल द स्टेट्स। उनका ऑब्जर्वेशन ये था। देन हमने जो हमारा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम जो है, टिप्स स्कीम जो है, इसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स हम इंडस्ट्रीज को देते हैं, जैसे कैपिटल इंटेंसिव सब्सिडी, पावर का सब्सिडी, ये सब देते हैं। तो हमने लास्ट 5 साल में 250 यूनिट्स को 33.61 करोड़ ये स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनको इंसेंटिव के रूप में मिला है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से लास्ट 5 इयर्स में पूरा 52.50 करोड़ दिया गया है। ये नीड्स का स्कीम था। अभी वो नीड्स का स्कीम मॉडिफाई करके उन्नति उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियल स्कीम बोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 9 मार्च को इसका घोषणा किया था। इसमें क्या होगा कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न में जितना भी जिलाएं हैं उसको जोन ए और जोन बी कैटेगरीज में करेंगे, और उसमें जो भी इंडस्ट्रीज है उनको उसके हिसाब से इंसेंटिव्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव है, जो जोन ए में है, उनको 30% अप टू मैक्सिमम 5 करोड़ तक उनको इंसेंटिव मिलेगा। जोन बी में जो है 50% मैक्सिमम अप टू 10 करोड़ तक उनको इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा किसी ने अगर लोन लिया है तो जोन ए में 3% एंड जोन बी में 5% तक उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 7 साल के लिए। एंड इसके अलावा 100% नेट GST का रिफंडमेंट है बोथ इन जोन ए एंड जोन बी। सो अगर देखा जाएगा तो एक एक इंडस्ट्री उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैक्सिमम 250 करोड़ तक एक एक इंडस्ट्री इसमें इंसेंटिव्स के रूप में ले सकती है। अभी हमारे स्टेट में करीबन 8 यूनिट्स रेडी है इस स्कीम में बेनिफिट्स लेने के लिए। अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनका शुरू इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स लेना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि हमारे पास 19 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, 19 ITIs है, जिनका हम एडमिशन शुरू कर रहे हैं इस साल में। 10 जून से शुरू होगा और 5 जुलाई तक चलेगा। डिफरेंट प्रोसीजर्स है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। इसके लिए आज हम प्रेस नोट भी दे रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट भी देने वाले हैं। एंड 16 जुलाई पे फर्स्ट सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद अगर कुछ सीट्स और भी अगर बचे हुए हैं कहीं पे और गैप है तो वॉक-इन्स भी हम लोग शुरू करेंगे। तो हमारे स्टेट में पूरा 3975 सीट्स है अक्रॉस 36 ट्रेड्स में है। इन सब के लिए हम लोग एडमिशन शुरू कर रहे हैं। देन फूड प्रोसेसिंग में हमने लास्ट ईयर 434 केसेस में हमने ब्रांच को स्पॉन्सर किया था, जिसमें 7 करोड़ का इनको सैंक्शन हुआ है।
ये मेनली कोई भी अगर फूड प्रोसेसिंग मतलब फूड प्रोसेस करके वो अगर सेल करेंगे उनके लिए बहुत एडवांटेज है। 35% तक इसमें कैपिटल सब्सिडी है एंड अभी तक हमने 10.28 करोड़ हमने एसएचजीज को सीड कैपिटल के रूप में भी इसको दिया है। आपको पता है कि हम लोग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से पीएमईजीपी हमारा मेन स्कीम है जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट ईयर पूरा 40 करोड़ का लोन अमाउंट डिसबर्समेंट हुआ है अराउंड 570 लोगों के लिए एंड पीएमईजीपी 2 में 3.21 करोड़ हमने डिसबर्समेंट कराया है। फॉरेन ट्रेड को अगर देखा जाए तो देन हमारा सबरूम इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने 9 मार्च को इसको इनॉग्रेट हुआ है। तो इसमें बोथ पैसेंजर एंड फ्रेट दोनों का भी प्रोविजन है। सो जैसे ही ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा दोनों तरफ से तो हमारे स्टेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। श्रीनगर बॉर्डर हाट जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लास्ट ईयर 9 मई से ही वो ऑपरेशन है। कमला सागर भी कुछ दिनों में ये शुरू हो जाएगा। बांग्लादेश से भी कंफर्मेशन आया है तो मे बी इन 1 मंथ और सो इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। लास्ट ईयर अगर बांग्लादेश से अगर हम ट्रेड देखेंगे तो पूरा 715 करोड़ का था। इसमें मेजर इंपोर्ट थे 703 करोड़, एक्सपोर्ट हमने किया था 12.31 करोड़। हमारे पास जो लैंड कस्टम स्टेशन है खोवाई, मुगरीघाट और प्रहारमुरा, ये तीनों को एंड धर्मानगर का, ये तीनों को हम लैंड पोर्ट अथॉरिटी को हैंड ओवर कर रहे हैं ताकि उसको वो आईसीपी के तौर पे अच्छा सा डेवलप करें। सब एजेंसीज को अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो देखता है उनका मीटिंग हुआ था दिल्ली में 26 अप्रैल को। उसमें सबसे पहले होगा कि जो कस्टम डिपार्टमेंट है उनसे नोटिफिकेशन हो जाएगा। हमारी कोशिश है कि बांग्लादेश के तरफ से आप अगर वहाँ जाए तो फेनी रिवर के ऊपर जो मैत्री सेतु है वहाँ से आप देख सकते हैं, उधर उनका भी एक लैंड पोर्ट तैयार हो गया है। तो उनका लैंड पोर्ट भी उन्होंने जो प्रॉमिस किया है कि पैसेंजर के लिए वो सितंबर महीना तक वो शुरू करेंगे, सितंबर तक। हाँ, और कुछ टाइम लगेगा उनको। जो ट्रक और बाकी वहाँ पे जो पार्किंग एरिया और व्हीकल टेस्टिंग वगैरह का वहाँ पे ये होगा। तो मेरे ख्याल से बाय सितंबर यहाँ से पैसेंजर मूवमेंट शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद जो गुड्स मूवमेंट है वो भी 2-3 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। करंट फाइनेंशियल में नहीं होगा। और कमला सागर जो हाट है, बॉर्डर हाट, वो तो बहुत दिनों से बंद है। मैडम ने बोला था कोविड में एक्चुअली बंद हुआ था, कोविड में बंद हुआ था और उसका भी कुछ मॉडर्नाइजेशन भी हुआ है हमारी तरफ से, उनका तरफ से। तो अभी इसी महीने में हम लोग चालू करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। जो मैडम ने अभी आपको बताया कि त्रिपुरा में पिछले कुछ सालों में नेशनल हाईवेज का काम हुआ है, लेकिन अगर हम इस नेशनल हाईवे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उद्योग नहीं उसके ऊपर स्थापन करेंगे तो उसका जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से ये नेशनल हाईवे के ऊपर वो कैलाश शहर से शुरू करके कमलपुर, खोवई, शांति बाजार और सबरूम तो है ही। तो ये जो वेस्टर्न पार्ट है इसमें अगरतला, बुकली, बदरगाह, बुचनगी तो हमारे पुराने इंडस्ट्री सेट्स हैं। तो ये जो 4 जगह हमने अभी चिन्हित किया है, एक है खोवई में, एक है सिपाहीजला में हम लोग कुछ लैंड टी गार्डन से हमने मांगा है, वो हमें मिलने की उम्मीद है। शांति बाजार में हमें लैंड हेरिटेज डिपार्टमेंट ने अभी फिलहाल में एनओसी दिया है और सबरूम में एसईजेड है। नेशनल हाईवे के ऊपर नए इंडस्ट्रियल स्टेट करने का ये डिपार्टमेंट का बड़ा निर्णय है। इस अगले 3-4 साल में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये नए इंडस्ट्रियल स्टेट चालू हो जाए। ऐसे ही अम्बासा में जहाँ से रेलवे जा रही है और जहाँ से अभी अगरतला से चंपकनगर अभी 4 लेन का काम शुरू हो जाएगा, वो टेंडर भी हुआ है। तो दूसरा पार्ट उसका मुंगिया कामी से चंपकनगर का भी काम अगले साल शुरू हो जाएगा। तो पुराना जो हमारा हाईवे है ये भी स्ट्रेट हो रहा है और 4 लेन हो रहा है।
ये सिलचर से सबून तक होगा। इसके ऊपर भी अभी हमने लालशरी में अम्बासा में हमने इंडस्ट्रियल एस्टेट हमने लैंड वहाँ लिया है और काम चालू किया है। तो नेशनल हाईवे के ऊपर इंडस्ट्रियल एस्टेट करना ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का टॉप प्रायोरिटी है। अब जो बाकी जो जितने इनिशिएटिव्स हैं ये इसको सपोर्ट करने के लिए। पिछले 5 सालों में इंडस्ट्री सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कितना हुआ टोटल है क्या? गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट सब मिला के एम्प्लॉयमेंट अब देखिए मैडम ने जैसा बताया कि एक साल में ही करीब हमारे 6 मीडियम उद्योग आए। जैसे मैं उस दिन ऑफिस में गया एग्जाम पे, जैसे रबर वुड है हमारे पास, रबर वुड का प्रोसेसिंग करने के लिए कोई फैक्ट्री नहीं रहती। अभी बुजंग नगर में हम आपको ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे वो फैक्ट्री। और रबर वुड से जो लैमिनेशन होता है ना, जैसे डोर को लगाते हैं, इतना तक का वो रिफाइन प्रोडक्ट बनाता है। तो वो डेली 50 टन करता है, वहाँ करीब 200-250 लोग काम करते हैं। तो ऐसे 6 उद्योग हमने चालू किए। दूसरा जो संख्या हमारी MSME की है, जो पिछले कुछ 25,000-26,000 उसकी संख्या है हमारे पास उद्योग पोर्टल है, वो संख्या 57,000। लेकिन उनको सबको और भी आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, मार्केटिंग सपोर्ट, सर्टिफिकेशन करने के लिए वो रैम प्रोजेक्ट किया है। तो हम लोग रोजगार से ज़्यादा स्वयं रोजगार के ऊपर जोर देते हैं। और मेरे ख्याल से कि कुछ लोग हैं त्रिपुरा में, मैंने देखे, हमें मिले लोग वापस आ रहे हैं बाहर से। जो बाहर गया था 10-15 साल 20 साल बाहर काम किया, वो वापस भी आ रहा है। मतलब यहाँ पे अभी रोजगार शुरू होना चालू हुआ है। जैसे रेलवे से यहाँ सामान भेजना लाना इजी हो गया, तो यहाँ पे ट्रेड करना भी इजी हो गया। सर और थोड़ा वो कॉर्पोरेशंस के हिसाब से आते हैं तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सब कॉर्पोरेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। मेजर है त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसमें लास्ट ईयर में TIDC ने स्पेशली जो लैंड हम लोग लीज आउट करते हैं इंडस्ट्रीज को, वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। सो लास्ट ईयर लीज एंड लीज प्रीमियम के तौर में 9.08 करोड़ TIDC ने कलेक्ट किया है, रेवेन्यू अर्न किया है, which has been the highest so far, and almost cash profit 6.84 करोड़ आया हुआ है 2023-24 में। ये प्रोविजनल है, फाइनेंस स्टेटमेंट होने के बाद हमें पता चलेगा। जैसे मैंने बताया था तो इंडस्ट्री TIDC अभी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स खोवाई में, सिपाही जला में एंड उन्नाकोटी में ज़्यादा लैंड लेके, एंड शांति बाजार साउथ त्रिपुरा में भी हम लोग लैंड लेके इंडस्ट्रियल एस्टेट्स वहाँ पे डेवलप करने वाले हैं। Then other important corporation is त्रिपुरा टी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसमें जैसे अभी सेक्रेटरी सर ने बताया था कि ऑक्शन सेंटर हमारा इस साल शुरू वो इनॉग्रेशन हो गया है। इसका प्रोसेस शुरू हुआ है एंड सम सिलेक्शन एंगेजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजर फॉर ऑक्शन वो प्रोसेस में है, वो होने के बाद ये शुरू होगा। इसके अलावा TTDC के तरफ से ब्रह्मकुंडा टी प्रोसेसिंग फैक्ट्री को एक मॉडर्नाइजिंग का प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें NEC से हमें 2.03 करोड़ का अमाउंट मिला हुआ है। देन माचमारा टी एस्टेट जो है, जो बहुत पुराना वाला है, उसको भी रेनोवेशन करने का ये एक मिनी टी प्रोसेसिंग फैक्ट्री वहाँ पे लगाने का प्लान है विद 2.27 करोड़। इसको TIDC कर रहा है। एंड टी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक टी मैनेजमेंट कोर्स भी करने का प्लान कर रहे हैं, MBB यूनिवर्सिटी के साथ इसको कोलैबोरेट करके प्लान करने के लिए कर रहे हैं। तो ये सब हुए हैं हमारे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मेजरली जितना भी अचीवमेंट्स हुआ है। सो स्किल डिपार्टमेंट में मेजरली हमारा मुख्यमंत्री दक्षता उन्नयन प्रकल्प लास्ट बजट में हमारा जो अनाउंस हुआ है 50 करोड़ के लिए फॉर द इफेक्ट ऑफ 5 years। इसमें हम मेजरली ये करेंगे कि अभी तक हम लोग जितना भी स्किल प्रोग्राम्स कर रहे थे, वो ग्रेजुएशन होने के बाद जो स्टूडेंट्स या बच्चे जो जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, उनको स्किलिंग करने के लिए हमारा प्लान था। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स रहेंगे, चाहे किसी भी कोर्स में हो, नर्सिंग में हो या कॉमर्स में हो, किसी भी कोर्स में हो, ITA में हो, पॉलिटिक में हो, उनको हम
मोर एम्प्लॉयबल, मतलब मार्केट रेडी हम उनको कैसे कर सकते हैं, ये इस स्कीम का मेन उद्देश्य है। तो हम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके सब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को हम इंग्लिश स्पीकिंग, देन डीपीआर प्रिपरेशन, कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस, कुछ बेसिक जो स्किल्स होते हैं उसमें हम उनको ट्रेनिंग करने वाले हैं। रफली अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स विल बी ट्रेन्ड। एंड इसके अलावा हम कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज भी करेंगे, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। ऑलरेडी एक बैच इसमें शुरू हो गया है, जो टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर जो भोजन नगर अगरतला में जो है, उसमें 90 कैंडिडेट्स को हमने ट्रेन किया है, ये स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में किए हैं। इसके अलावा स्किल डिपार्टमेंट नल जल मित्र ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर रहा है। हमें पता है कि जल जीवन मिशन बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जहाँ पे हर घर के लिए जल दिया जा रहा है, बट वो कनेक्शन मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए नल जल मित्र बोल के एक स्किलिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है स्किल डिपार्टमेंट। इसमें टोटल 1262 कैंडिडेट्स को हम ट्रेनिंग करेंगे। ये कैंडिडेट्स को पंचायत ही स्पॉन्सर करेगा, कंसर्न पंचायत ही स्पॉन्सर करेंगे। तो आज के दिन में 106 कैंडिडेट्स को ये ट्रेनिंग करके सर्टिफाई किया गया है, जिसमें 43 महिलाएं हैं। एंड अभी सेकंड ट्रेनिंग हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं। स्किल डिपार्टमेंट में कुछ इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स भी होना शुरू हुआ है 2022-23 से। तो तब से लेके अभी तक 18 बच्चों को हमने प्लेस किया है, स्पेशली जापान में। बाकी कंट्रीज का भी हम ट्राई कर रहे हैं। आज के दिन में और 5 लोगों को भी ट्रेनिंग में वो लैंग्वेज ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो होने के बाद हम इनको भी प्लेस करेंगे। इनका एवरेज सैलरी है रफली अराउंड 1 to 1.5 लाख पर मंथ। हर साल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स जो है वो स्किल कंपटीशन कराता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिल्ली में ही होता है। तो हमने इस साल 34 कैंडिडेट्स को 5 डिफरेंट ट्रेड्स में हमने भेजा है। इसमें त्रिपुरा को 3 मेडालियन ऑफ एक्सेलेंस, उसमें मतलब आउट ऑफ दिस 3 2 साइबर सिक्योरिटी में और एक हेल्थ एंड सोशल केयर में मेडालियंस ऑफ एक्सेलेंस बोल के मिला था। और जो 2 लोग गए थे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी, मतलब जॉब ऑफर्स भी मिला है वहाँ पे। होपफुली दे विल बी जॉइनिंग सून। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट में प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना बोल के एक प्रोग्राम है, एक स्कीम है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर का हमने इसमें 12 करोड़ का प्रपोजल भेजा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, पूरा 5,000 बच्चों को ट्रेन करने के लिए। ये पूरा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में और इस साल में जो स्किल डेवलपमेंट से हम लोग करने वाले हैं, इसका एक कंसाइज रूप में बताया है।